ગુંજ ગુજરાતની સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આવીએ છીએ અમદાવાદ શહેરના સરખેજ વિસ્તારમાં આવીએ છીએ, જ્યાં આગળ ઓલ ઇન્ડિયા મિલ્લી કાઉન્સિલના જે ગુજરાત પ્રમુખ છે તેમના દ્વારા આજે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને શું વિગત હતી પ્રેસ કોન્ફરન્સની અને શું માહિતી આપવામાં આવી હતી તે વિશે ઓલ ઇન્ડિયા મિલ્લી કાઉન્સિલના ગુજરાતના પ્રમુખ મુફ્તી તારાપુરી સાહેબથી વાત કરીશું। આજની જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ હતી તેનું શું શેના માટે રાખવામાં આવી હતી તેનો મોટો આજની જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે આપણા અમદાવાદ શહેરની અંદર જે ડેમોલેશન ચાલી રહ્યું છે છેલ્લા 10 દિવસ 15 દિવસથી, એ અનુસંધાનની અંદર જે બધા જ લોકો બહુ જ પરેશાન છે। એની અંદર હિન્દુ બી છે, મુસલમાન છે, અને સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એ લેડીઝ સ્ત્રીઓનો મસલો છે અને બચ્ચાઓનો મસલો છે। એ બધા લોકો ખુલ્લા આસમાનના નીચે છે અને પૂરી દુનિયાની નજર જે છે એ આપણી આ પ્રોસેસની ઉપર ચાલી રહી છે, કારણ કે એની અંદર હ્યુમન રાઇટ્સનું બહુ મોટું વાયલન્સ થયું છે। સૌથી પહેલાં બાંગ્લાદેશીઓના નામ પર આપણે જે એક્શન લેવામાં આવ્યું, આપણે સરકારના સાથે છે। વિદેશી આપણા ધરતીની ઉપર હોય, આપણે એને બરદાશ્ત નહીં કરી શકતા। આપણા દેશની અંદર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરે એ લોકોને હાંકી કાઢવા જોઈએ, એ બિલકુલ છે, 100% સરકારને એના સાથે છે। પણ એની અંદર જે લોકો બેગુનાહ લોકો છે, જે લોકો આમ ઇન્સાન હતા, એ આમ ઇન્સાનને એની અંદર બરદાશ્ત કરવાની જે વાત આવી એ બહુ મોટી અફસોસજનક છે। અને એના લીધે જે લોકોને પરેડ કરવામાં આવી, એ લોકોને રોડની ઉપર ચલાવવામાં આવ્યા, તત્કાલિક એની અંદર ઓરતો બી હતી, એની અંદર નવજવાન લોકો બી હતા। તો આ બધી વસ્તુના લઈને અમે સરકારથી એ અપીલ કરવા માટે અને સરકાર સુધી એ વાત પહોંચાડવા માટે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરી કે આની અંદર માનવ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થયું છે। તો સરકારને અમે એ દરખાસ્ત કરીએ છીએ કે જે લોકો એની અંદર ઇફેક્ટેડ થયા છે એ લોકોને તત્કાલિક ઇન્સાનિયતના નાતે એ લોકોની રિહેબિલિટેશન, એ લોકોનો કેમ્પ કરવામાં આવે, એ લોકોને ખાવાનો ઇંતજામ કરવામાં આવે। બીજું વસ્તુ એ કે એ લોકો પાસે મકાન નથી અહીંયા, અને એ ગરીબ લોકો છે, અને ગરીબ લોકો સાથે એ કઈ જગ્યા પર અને એ લોકોને મકાન આપવાની વાત બી થઈ છે, એ લોકો પાસે જે પૈસા આપવાનું કહ્યું છે, પૈસાનો બી એ લોકો પાસે ઇંતજામ નથી। તો ઓલ ઇન્ડિયા મિલ્લી કાઉન્સિલ એ લોકો માટે લીગલ ફાઇટ બી કરવાની પૂરી તાકાતના સાથે મેદાન પર ઉતરશે। બીજી એ લોકોનો ફાઇનાન્શિયલ એતબારથી જેટલો બી સપોર્ટ થશે, અમે ગુજરાતની તમામ લોકો પાસે એ લોકોના સહાયતા માટે અપીલ કરીશું કે એ લોકોની મદદ માટે ગુજરાતની તમામ પ્રજા એના માટે આવે સાથે। આપે જો જોયું કે એક તરફ જે કાયદો અને કાનૂન છે તેની સામે એક તરફ માનવતા પણ છે, જ્યારે કાયદો અને કાનૂનો છે સાથે સાથે માનવતાને પણ ધ્યાને રાખવું પડે છે। ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા માનવતાનું પણ હનન થયું છે, અને જે બાંગ્લાદેશીઓની વાત છે, ખરેખર બાંગ્લાદેશી જે હોય છે, જે પરપ્રાંતિયો છે, જે ઘૂસણખોરો હોય છે, તેઓને કડકમાં કડક સજા આપવી જ જોઈએ। મગર તેના સાથે ઓલું કહે છે ને કે ભાઈ ઘઉંના સાથે કંકર પણ પીસાઈ જાય છે, તેવું ના બને તેના માટે સરકારે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, ઉચ્ચ અધિકારીઓએ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। અને જે ગુજરાત ઓલ ઇન્ડિયા મિલ્લી કાઉન્સિલ જે છે તેના ગુજરાતના પ્રમુખે જેવી રીતે કહ્યું કે તે માટે માનવતા માટે તે લોકો આગળ આવ્યા છે અને તેની લડત આપશે। હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આગળ સરકાર શું પગલાં ભરે છે। ગુંજ ગુજરાતની સમાચાર, आसिफ खान पठान। मैं एडवोकेट अफसर जहान हूँ और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नेशनल लीगल एड्स के डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीज़ को लेकर रखी गई, ये जो चंडोला लेक में मास डिमोलिशन हुआ है, इसको लेकर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हम गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि जितनों को आपने डिस्प्लेस किया, इनका फ़ौरन रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन का इंतज़ाम किया जाए। और मिल्ली काउंसिल भी जो है ये कोशिश करेगी कि इनका सोशल स्टेटस, इनका मान सम्मान वापस लाया जाए, और साथ में लीगल फ़ाइट जो होगी आगे वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। क्या मेन मुद्दे जो मानवता का उल्लंघन किया गया वहाँ जी, जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि किस तरह से आधी रात को फोर्सफुली पूरी पुलिस फोर्स घुसती है पूरे इलाके में, घरों से निकालती है, आदमियों को, औरतों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, और उसमें बीमार लोग भी थे। ऐसी औरतें भी थी जो प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उनको भी तमाम को एक खुले मैदान में जमा किया जाता है। वहाँ से 2-3 किलोमीटर तक परेड करवाया जाता है। फिर आप जैसे ही कोई ज़िम्मेदार रिपोर्टर्स जब सवाल करते हैं तो फिर औरतों को छोड़कर मज़ीद 5 से 7 किलोमीटर मर्दों को जो है रैली निकलवाई जाती है, उनको बांग्लादेशी कह के लेबल किया जाता है, और पुलिस कस्टडी में 2-3 दिन इलीगली उनको डिटेन किया जाता है, जस्ट टू फाइंड आउट कि इनके डॉक्यूमेंट्स कितने लीगल हैं।
और ये भी आश्चर्य की बात है कि उन लोगों ने, जितने लोग थे 1000 में से 850 ने तो अपनी आईडीज़ प्रूव भी कर दी, और वो गुजराती ही निकले, इंडियंस निकले। और कुछ लोग जैसे आप जानते हैं वेस्ट बंगाल के थे जो काम करने के लिए यहाँ आए थे, और बिहार के कुछ लोग हैं। इन तमाम के साथ भी बहुत टॉर्चर जैसा सलूक किया। मतलब इनके आधार को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। फिर किस बेसिस पे पूरे मुल्क में आधार कार्ड को वैलिड माना जाता है? हर जगह आधार कार्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है। बहरहाल उन लोगों ने अपने गाँव से, सरपंच से जो है एक्नॉलेजमेंट मंगवा के अपनी आईडी, अपनी शनाख्त को प्रूव किया, और 2-3 दिन जो डिटेन रहे, ये पूरा जो है डिटेन्यूज़ जो होते हैं, एक्यूज़ जो होते हैं, उनके भी कुछ राइट्स है संविधान में, उसका भी इन लोगों ने उल्लंघन किया। तो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत ये अपील है, हम कोर्ट में भी ये अपील करेंगे कि वो अफसर जिन्होंने DK बासु के केस में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का ऑनर नहीं किया, और जिन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के गाइडलाइंस को ऑनर नहीं किया, और इनके साथ इतना बदसलूकी की, ये व्यवहार किया, इन अफसर पर जो है कार्रवाई की जाए, लीगल एक्शन लिया जाए। हम इनके लीगल एक्शन के लिए भी एक अपील करेंगे कोर्ट के साथ। खैर, डिमोलिशन तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर के तहत हो रहा है, जिसमें मैं ख़ास तौर से देखती हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर वो इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, दूसरे फेस में इन्होंने कहा कि ये तो इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, अगर इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स हैं तो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरा एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करता है ऐसे इल्लीगल ऑक्यूपेंट्स को रीसेटल करने के लिए या दूसरी जगह इनको हटाने के लिए, जिसको बिल्कुल अनदेखा किया गया, फॉलो नहीं किया गया। और इसके तहत ये भी तो समझना होगा गवर्नमेंट को कि जो रोज़मर्रा की मजदूरी करने वाले लोग हैं वो कहाँ जाकर बसेंगे। क्या आपके पास इतने शेल्टर होम्स हैं जो आप इनको सहारा दे सको, या फिर आपके पास कोई ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने तैयार पहले से करके रखा जो इनको वहाँ जगह दे दे। ये रास्तों पे फिर रहे हैं, और जो अपने रिश्तेदारों के पास गए वो खुद भी गरीब हैं, कितने दिन इनको पाल सकेंगे। तो सरकार को इन तमाम बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और ऑल इंडिया मिली काउंसिल इस नज़रअंदाजी के लिए, इस लापरवाही के लिए इसकी पुरजोर मुखालिफत करती है और अपील करती है। और ख़ुद हम इनके सोशल स्टेटस के लिए भी फ़ाइट करेंगे, लीगल फ़ाइट भी करेंगे, सोशल फ़ाइट भी करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि इस सब मामले में मुसलमान जहाँ हैरान है, जो प्रॉपर्टी नहीं है, तो वक़्फ़ को इस मामले में कुछ दखलंदाजी करनी चाहिए, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी में से कुछ उनको हिस्सा दिया जाए, तो घर दिया जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए? क्या सरकार के पास प्रॉपर्टी की कमी है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ दे दी जाए? हाँ, लेकिन अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ टेम्परेरी जो ऐसी पड़ी हुई है, अगर वो चाहते हैं कि टेम्परेरी वहाँ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए, और गुजरात गवर्नमेंट के पास इतनी ज़मीनों की कमी है, तो फिर वक्फ प्रॉपर्टी की भी मदद ली जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को लेकर वक़्फ़ के भी तो आगे आना चाहिए। तो ये सारा तो सरकारी, ये सारी तो सरकारी डिपार्टमेंट्स है। सरकार को सोचना चाहिए कि वो ज़मीन कहाँ से लेके देंगे, रिहैबिलिटेशन कहाँ से निकाल कर देंगे। 45 डिग्री की धूप के अंदर जो लोग परेशान हैं, तो उनको लेकर वक़्फ़ के भी कहीं न कहीं तो अभी टेम्पररी उनको जगह देनी चाहिए ना, बाहर आना चाहिए ना। हाँ, वक्फ की ज़िम्मेदार मैं नहीं, मैं वक्फ बोर्ड की चेयरमैन नहीं हूँ। वक़्फ़ के जिम्मेदारों को बिल्कुल, मैं वक्फ के ज़िम्मेदारों को भी ये कहती हूँ। लेकिन देखिए, अभी हमने जब फैक्ट फाइंडिंग की तो यहाँ पर एक दरगाह है, शाह आलम दरगाह है ना, जिसके करीब चंडोला लेक है। तो ये दरगाहें, मस्जिदें वक्फ की ही प्रॉपर्टी होती हैं, और जब लोग वहाँ पे आश्रय लेने के लिए गए थे, पुलिस ने उनको वहाँ से भी भगा दिया। वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी थी ना, तो पुलिस ने क्यों वहाँ पे आश्रय लेने नहीं दिया? हमको पता चला सुबह में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कि वहाँ भी वो लोग उनको शेल्टर लेने की इजाज़त नहीं दे रहे। हैरत ये हो रही है कि पुलिस इनके पीछे पीछे फिर के क्यों पीछे पड़ी है कि वो कहीं भी आश्रय ना ले पाएँ। बात वक्फ की ज़मीन पे आश्रय लेना या मस्जिद में लेना, मंदिर में लेने की नहीं है। वक्फ इनका, ये पुलिस अथॉरिटीज़ इनका पीछा क्यों कर रही है? इनको खाना देने की, सहायता देने के लिए जब कुछ लोग गए थे तो उन्होंने खाना देने से मना कर दिया, डरा धमका कर भगा दिया उन NGOs को। क्या चाहती है ये पुलिस? यानी थक हार के ये लोग कहीं और पलायन कर दें क्या? आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से चंडोला इलाके में
12,000 के आसपास रिहायशी मकान और 600 के आसपास कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को तोड़ा गया। इस पूरे जो प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो हनन हुआ वो मानवाधिकारों का हुआ। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सबसे ज़्यादा किया गया। 26 तारीख की रात में ज़बरदस्ती पुलिस ने उठाकर 1,000 लोगों को पकड़कर उनकी परेड कराना फुटबॉल ग्राउंड तक और वहाँ तक ले जाना गायकवाड़ हवेली तक, ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। और फिर भी इस काम को सिर्फ इस नाम पर कि बांग्लादेशी रहते हैं कह के इसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई। ये पूरी तौर पर हम मानते हैं कि वहाँ की जो बड़ी आबादी थी वो 95% उसमें मुसलमान प्रभावित हुए और 5% देवी पूजक समुदाय के लोग उसमें प्रभावित हुए। तो क्या गरीबों का इस शहर में रहना बसना, उनको उजाड़ने के लिए क्या उनके ऊपर विदेशी मुहर लगा देना, इससे क्या कानूनी बन जाएगा? हम लोग बिल्कुल पूरी ताकत से इस बात को मानते हैं कि इस तरह के कोई भी काम मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। अगर वो विदेशी पाए भी जाते हैं तो उनके लिए इस देश में फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट है, फॉरेन ट्रिब्यूनल में उसका मामला जाएगा और उनकी भी एक ह्यूमन डिग्निटी है। आप किसी की भी जो डिग्निटी है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इस पूरे प्रोसेस में एक बदनाम करना और उस इलाके के लोगों को, जैसा कि हमारे साथी हमारे लीडर अफसर जहां ने बताया कि वो खुद उस परिवार से मिल के आए कि हॉस्पिटल ने उनको इलाज करने से मना कर दिया। हम ये सोच रहे हैं कि इन बच्चों का एडमिशन किन स्कूलों में होगा? क्या वो सरकारी स्कूल इनको आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या वो आंगनबाड़ी सेंटर्स यहाँ के ये जो बच्चे हैं उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे? क्या बांग्लादेशी मोहर लगाएंगे? चंडोला के नाम पर इन लोगों को तो एक भयंकर ट्रॉमा से झेलना पड़ेगा। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इनके ट्रॉमा को हैंडल करने के लिए भी सरकार को कोई कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो अभी पेंडिंग है पिटीशन, जिसको 19 जून को उसमें आगे की सुनवाई होगी रीसेटलमेंट पर, उसमें सरकार के साथ हमारी ये मांग रहेगी, वो बहस में आएगा कि ये 7,600 जो भी पैसा जाएगा और ये जो 3 लाख जो भी पैसा होगा इसकी किस्तों को नॉमिनल किया जाए, क्योंकि ये लोग तो दिहाड़ी मजदूर हैं, ये बहुत कम पैसे कमाने वाले लोग हैं। एक बार में 30,000 की 40,000 की किस्त कैसे जमा करेंगे? तो ये एक अहमदाबाद में मानवाधिकारों का एक स्पष्ट उल्लंघन हुआ और हम सब लोग मिल्ली काउंसिल और दूसरे संगठन मिलके इस मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ खड़े हैं। और इसको जिस भी कोर्ट में, जिस भी ट्रिब्यूनल में, जिस भी कमीशन में अगर हमको लड़ना पड़े, हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रिया।